Okay, hi, good morning, everyone. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So, let me wait for a while so that you all can join. And what we are trying to do today is we'll be doing the same algorithm that is Cyrus Beck that we were doing yesterday. ठीक है क्योंकि it was not completed, so we'll be repeating the entire process again. Nikhil? Yes, good morning, Nikhil. How are you? Yes, am I audible to you? Nikhil Singh. Nikhil Singh, please unmute yourself. Nikhil Singh, you have not submitted any assignment and you have not submitted, you have not given the MCQ also. Moreover, you're not taking the classes even. I don't know कि आप लोग क्या समझते हैं online classes को. Chalo, let's get started. I want to show you the syllabus first. Let me show you the syllabus. So this is your syllabus. Can you all look at here? ये we are at unit 2 और unit 2 का जो first part है that is transformation, 2D geometric transformation, translation, scaling, rotation, reflection and shear transformation, matrix representation of homogeneous coordinate. Homogeneous coordinate में सारे matrices को कैसे represent करते हैं वो dummy row add करके, composite transformation, we have done it all. ठीक है, तो आपका unit 2 का first part is entirely completed. Unit 2 का second part में we have covered this Cohen-Sutherland and we have started Cyrus-Beck line clipping. Cohen-Sutherland or Cyrus-Beck line clipping में oftenly they will ask you in short what is the difference between Cohen-Sutherland and Cyrus-Beck, why we prefer Cyrus-Beck over Cohen-Sutherland, and Sutherland-Hodgman is a polygon clipping algorithm. ठीक है, ये दोनों line clipping है और Sutherland-Hodgman is a polygon clipping algorithm. After completing all the three algorithms, we'll be starting the window to viewport transformation. ये वाला ऊपर वाला part start करेंगे. ठीक है, with that we will be done with the part unit 2. फिर आपका unit 3 curves रहेगा और unit 4 में 3D transformation रहेगा. ठीक है, तो सबको क्लियर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेबस सबको क्लियर है? सिलेबस में यूनिट 1 वी हैव कंप्लीटेड, यूनिट 2 में हम यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड एंड द सेकंड पार्ट वी आर डूइंग द लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. ओके, सो अगेन आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज Cyrus-Beck एंड व्हाई डू वी यूज Cyrus-Beck लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. कल हमने स्टार्ट किया था कुछ Cyrus-Beck का, क्या स्टार्ट किया था? देखो, Cohen-Sutherland हमने कल पढ़ा था. Cohen-Sutherland में we have a limitation that we can only work for a rectangular window. मतलब कि जो आपकी लाइंस को हमने जिनको क्लिप कराना है that can only be clipped around a rectangular window. उस rectangular window को हम क्या कर रहे थे? We are extending the edges of the rectangular window and we are converting the region into 9 regions. And every region is been assigning a 4-bit code. TBRL की हेल्प से. ठीक है ना? और आपको अगर मैं पूछूं, yes, who will tell me? Okay, Aman, tell me, in Cohen-Sutherland, what is the condition of accepting a line? When we truly accept a line in Cohen-Sutherland? When do we truly accept a line? Trivial acceptance कब होता है Cohen-Sutherland में? What is the condition of trivial acceptance? हाँ जी, Aman Rawat, do you want to tell? Do you know the answer? Who knows the answer?
दीपक, हाँ साहिल बोलो। इट इज वेरी सिंपल, कितनी बार बताया है कि ट्रिवियल एक्सेप्टेंस कब करेंगे शुभम? यू देयर इन द क्लास? दैट मीन्स यू गाइज आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। We will trivially accept a line segment when both the endpoints are having the outcode as 0 0 0 0. जब दोनों आउटकोड 0 0 0 0 होंगे तब हम ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं ना, याद नहीं है, भूल गए हो सब? ट्रिवियल एक्सेप्टेंस कब होता है? ट्रिवियल एक्सेप्टेंस कब होता है कौन सदरलैंड में? जब आपके आउटकोड दोनों एंड पॉइंट्स के 0 0 0 0 हो, जब आप पूरी लाइन को विजिबल कराते हो। और ट्रिवियल रिजेक्शन कब होगा? व्हेन डू यू ट्रिवियल रिजेक्ट योर लाइन? आई एम आस्किंग अबाउट कोहन सदरलैंड। रिजेक्शन कब होगा? एनी वन ऑफ यू रिमेंबर दिस केस? आप एक लाइन सेगमेंट को कब रिजेक्ट कर रहे थे? व्हाट वाज द कंडीशन? इतना चुप बैठे हुए हो जैसे कुछ भी नहीं पता है। Yes, no one wants to add on? हम लॉजिकल एंड निकाल रहे थे, we were computing the logical and when logical end at two endpoints is not zero, जब लॉजिकल एंड दोनों एंड पॉइंट्स का 0 नहीं आता है तब आप क्या करते हो? तब आप उस लाइन को रिजेक्ट कर देते हो। एंड व्हेन इट इज 0 तब आप क्या करते हो? आपको फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होते हैं। ये क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, लेट मी शो यू द क्वेश्चन पेपर। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। एक मिनट, आप लोग ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पता नहीं। अगर आप देखोगे YMCA का पेपर, YMCA के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आपने अगर इतने सारे दे भी दिए हो, इस बार तो मेरे ख्याल से आपका MCQ नहीं होगा, फिजिकल एग्जाम ही होगा। समझ रहे हो? MCQ मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा। तो आप यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस एंड द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उसमें आप प्रीवियस पेपर्स देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं। You have to do the deep study, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, then only you will be able to answer। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर F। सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन पेपर? Can you all see that question paper here? Yes, ma'am. Can you read that question? Question number F read करो चलो। Just read out the question number F. अरे रीड करो। Can't you read the question, Shubham? Ma'am, yes, हम read कर रहे हैं। How can you determine How if can the you determine if the line is completely visible or partially visible? using region outcode? Region outcode in the Cohenson-Sutherland algorithm for line clipping. तो इसके अंदर आपको क्या करना है? What is the answer you have to written? What do you have to write here? कोहन सदरलैंड आपको पढ़ा दी है, आपको पता है कि जो लाइन कंप्लीटली विजिबल होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, और जब पार्शली विजिबल होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। तो यू हैव टू राइट द कंडीशंस। अब ये क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स का, तो आप फटाफट एक डायग्राम बना सकते हो। यू कैन मेक अ डायग्राम है कि आपने ये रेक्टेंगुलर विंडो बना दी, ठीक है, उसके बाद आपने कंप्लीटली विजिबल वाली एक लाइन बना दी, ठीक है, और एक पार्शली विजिबल वाली लाइन बना दी। This is partially visible line segment and this is completely visible line segment। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट का आउटकोड देखो, इस वाली लाइन सेगमेंट के आउटकोड क्या होंगे? 0 0 0 0 0 0 0 0। When both the end points are having the outcode 0 0 0 0, you will trivially accept
कंप्लीटली विजिबल है ये। और पार्शियली विजिबल में क्या होता है, इसका आउटपुट निकालोगे, इसका आउटपुट निकालोगे, जब इन दोनों आउटपुट्स का लॉजिकल एंड 0 के बराबर आएगा, दैट मीन्स दिस लाइन सेगमेंट इज पार्शली विजिबल, यू कैन नॉट रिजेक्ट इट। पार्शली विजिबल के लिए फिर आप इसके आउटपुट्स निकालोगे यहाँ पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, क्योंकि इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने आपको TBRL टेक्निक बताई है। तो ये थोड़ा सा फटाफट करके दिखाओगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ये सब करना है आपने। अब जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन देखो, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी रीड करो। प्रूव दैट टू स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कम्यूट, दिस इज 1.5 मार्क्स। अब आप बोलोगे कि मैम ने तो ये कराया ही नहीं है ना। अब ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो। स्केलिंग मैंने आपको पढ़ाई है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। कम्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूशन। कम्यूशन का मतलब होता है कि A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A, B प्लस A। तो ये ट्रांसलेशन के लिए वैलिड है। ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उसके अंदर यू कैन डू दिस कि T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T2 प्लस T1, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो आप प्लस करते हो। स्केलिंग में क्या करते हो, स्केलिंग में आप मल्टीप्लाई करते हो। तो स्केलिंग के अंदर आपने अगर एक ट्राइंगल को पहले थ्राइस स्केल किया, फिर उसको ट्वाइस किया, खुद सोचो, एक ट्राइंगल है, पहले आपने उसका जो साइज मैग्नीफाइज किया वो ट्वाइस किया, फिर आपने उसका साइज मैग्नीफाइज किया थ्राइस, ठीक है, समझ में आया केस। एक केस तो ये है कि आपका जो ट्राइंगल है उसको आपने पहले थ्राइस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ट्वाइस कर दिया। और एक केस ये है कि आपने अपने ट्राइंगल को पहले ट्वाइस किया फिर थ्राइस किया, तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। आपका ट्राइंगल पहले आपने उसको 3 गुना बढ़ा दिया फिर 2 गुना बढ़ा दिया, या आपने अपने ट्राइंगल को पहले 2 गुना बढ़ाया या 3 गुना बढ़ाया, ठीक है, तो उसमें दोनों के अंदर जो रिजल्टेंट ट्राइंगल आएगा दैट इज सेम। तो आपकी स्केलिंग जो होती है वो कम्यूशन, उसमें कम्यूशन प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो उसके अंदर आप कैसे करके दिखाओगे, आप यहाँ पर अपना स्केलिंग मैट्रिक्स लिखोगे। स्केलिंग मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 SX 1 0, यहाँ पर आता है ना SX, तो SX 0 1 0 SY 0 and this is 0 0 1। ये कोऑर्डिनेट जब कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ये आपको, ठीक है। ये तो आपका पहला हो गया। फिर दूसरे को उससे मल्टीप्लाई करो, दूसरे में ले लेना SX1, या अपनी कंफर्टेबल जोन के लिए आप क्या कर दो, पहले इनिशियलाइज कर दो SX और SY की वैल्यू को AB से, ठीक है। तो अगर आप इसको AB इनिशियलाइज कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा A और यहाँ आ जाएगा B, ठीक है। फिर अपने उसके लिए फिर आप एक ले लो XY, ठीक है, एक आप ले लोगे XY। तो इस पूरे मैट्रिक्स को XY वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, A और B की जगह पे XY रहते हैं। फिर दूसरे केस में पहले XY वाले मैट्रिक्स को AB वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। तो दिस इज, उसमें आप ये दिखाओगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का, जस्ट नोट इट डाउन। मैं आपको होमवर्क देती हूँ बट आप लोग सबमिट नहीं करते हो। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कम्यूशन मुझे करके दिखाओगे। प्रूव दैट टू स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कम्यूट। क्लियर है, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। मैम B1 ना, हाँ, एक सेकंड मैम क्वेश्चन लिख। prove that two scaling transformations commute. Have you all noted out the question? Sahil, Sarita, Pankaj, Prem, सबने लिख लिया है? Aman? Yes, ma'am. All of you. जी मैम। आप सौरभ, रोल नंबर 51, why don't you respond in the class? बिल्कुल respond नहीं करते हो आप। ये होता भी है मैम मेरे ईयरफोन्स खराब हो गए थे तो क्या कहते हैं आवाज नहीं जाती उसमें से। अब कैसे जा रही है? अब तो आ रही है आपकी आवाज।
ओके, तो अब हमें साइरस बेक पढ़ना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोहन सदरलैंड इज अ लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम जो रेक्टेंगुलर विंडो के लिए ही काम करती है, और उसके अंदर हमें रिपीटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होते हैं, है ना। याद है कि एक लाइन सेगमेंट अगर ऐसी है, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइन सेगमेंट, लेट्स सपोज ये आपका विंडो है और ये आपकी लाइन सेगमेंट है। इसके रीजन्स अगर मैं बना दूं, तो अगर आपको रिपीटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने थे, एक केस में हमने बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले थे, तो उसके अंदर एक तो आपको कोहन सदरलैंड में क्या करना होता है कि ये खाली रेक्टेंगुलर विंडो के लिए ही काम करती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर रिपीटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने की जरूरत पड़ती है, टेस्टिंग ज्यादा होती है इसके अंदर। तो कोहन सदरलैंड को हमने मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए वी हैव कम अप विद अ मोर एफिशिएंट लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम व्हिच वी कॉल्ड एज साइरस बेक। यहाँ पर देखो, पहले आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, है ना। फिर आपने देखा कि कौन सा वैलिड इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको एक शॉर्ट डिफरेंस प्रिपेयर करना है कोहन सदरलैंड और साइरस बेक में। दे में आस्क यू कि व्हाई डू वी प्रेफर साइरस बेक ओवर कोहन सदरलैंड, तो यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस, ठीक है। 2-3 लाइन का डिफरेंस है इनका, कि यही पहला तो कि कोहन सदरलैंड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगुलर विंडोज, जो आपका व्यूइंग एरिया है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए, जबकि साइरस बेक जो है इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलीगन, एनी कन्वेक्स पॉलीहेड्रन के लिए एप्लीकेबल है। एंड इसके अंदर हम एक सिंपल डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। मोरओवर यहाँ पे कोहन सदरलैंड में हम क्या, साइरस बेक में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द पैरामीट्रिक लाइन एल्गोरिथम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरामीट्रिक लाइन एल्गोरिथम। मैंने कल आपको डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम की हेल्प से हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि दिस इज आवर लाइन, लेट्स सपोज दिस इज आवर क्लिप एज, ये मेरी क्लिप एज है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। दिस इज माय क्लिप एज जिसका नाम मैंने रखा है EI, एंड दिस इज माय लाइन सेगमेंट P0 P1। इट इज इंटरसेक्टिंग द क्लिप एज एट दिस पॉइंट, लेट्स सपोज, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ले लो, कोई भी पॉलीहेड्रल ले लो, कोई भी शेप ले लो, ठीक है। उसकी एक एज के साथ हम केस कंसिडर कर रहे हैं। This is my edge EI. This is my line segment P0 P1. This is the intersection point at which the line segment is intersecting the edge. And let's suppose this is any point PEI. Now, I have drawn a normal over here. Outward normal मैंने drawn किया है, जिसका नाम मैंने रखा है NI. ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 vectors draw किए हैं from this point PEI. PEI से 3 vector मैंने draw किया. One is towards P0, one is towards P1 and one is towards the intersection point. और उस वेक्टर का नाम क्या है, PT minus PEI. PT यहाँ पर क्या है, PT is the parametric equation that we are using in this algorithm. This is the line segment, जो हमारी लाइन सेगमेंट ये वाली है ना, P0 P1, अगर इसको हम पैरामीट्रिक लाइन इक्वेशन की हेल्प से लिखे तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PT equals to P0 plus P1 minus P0 T, where T is a time interval at which we have drawn a line P0 to P1. Time interval, it is ranging from 0 to 1, and we have, let's suppose we have started at time T0 और T1 पे हमने P1 पे पहुंच गए, ठीक है। तो इस पूरी लाइन सेगमेंट को हम इस लाइन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन, PT equals to P0 plus P1 minus P0 plus P1 minus P0 T, ठीक है। ये मेरी लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रॉम दिस आर्बिट्री पॉइंट आई हैव ड्रॉन 3 वेक्टर्स एंड एवरी वेक्टर इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू PT minus PEI. PEI is the point and PT is the line equation. So PT minus PEI is the vector which I have drawn. 3 वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए और हर एक पॉइंट पे मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया नॉर्मल का इस वेक्टर के साथ, डॉट प्रोडक्ट। तो NE dot PT minus PI, NE dot PT minus PI and NE dot PT minus PI. Now this dot product की जो साइन है, if it is greater than 0, that means I am outside the half plane. जो मेरा हाफ प्लेन है, ये वाला मेरा प्लेन है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, that means I am outside the half plane. If the dot product of the normal with this vector PT minus PEI, if it is less than 0, that means I am inside the half plane.
एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स आई एम ऑन द एज। तो यहाँ पर देखो हम कर क्या रहे हैं, सारे स्पेक के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, नॉर्मल और वेक्टर का। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो मैं इनसाइड हूँ, ग्रेटर देन 0 आती है तो मैं आउटसाइड हाफ प्लेन हूँ, और इक्वल्स टू 0 आती है दैट मीन्स आई एम ऑन द एज। अब मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है। टी इज द टाइम इंटरवल एट विच आई एम इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए आई एम यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ। अब इस एक्सप्रेशन में आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीटी। पीटी की वैल्यू सबको याद है, पी नॉट प्लस पी वन माइनस पी नॉट ब्रैकेट में टी, ये पीटी की वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैंने पीटी की वैल्यू पुट कर दी, एंड इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आई हैव कम अप विद टी इक्वल्स टू एन आई ब्रैकेट में पी नॉट माइनस पीई आई डिवाइडेड बाय माइनस एन आई डॉट डी। डी को मैंने रिप्लेस किया है P1 माइनस पी नॉट से, P1 माइनस पी नॉट की वैल्यू को D से रिप्लेस किया है। यस ऑल ऑफ यू, मैंने कल बोला था इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो सबका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई सॉल्व कर रहा है साथ में? समवन इज सॉल्विंग दिस? बोला था ना इसको सॉल्व करना है, मैंने कल बोला था। वी हैव डन दिस, ये सब कल कर चुके हैं ना हम लोग। तो हमने टी की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। अब यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो वैलिड कब होगी? जब आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, एन आई डॉट डी should not be equals to 0. If your denominator is equals to 0, that means you are trying to divide it by 0, which is not possible. You cannot divide any number by 0. So you are taking a limitation, you are taking a restriction that this dot product of ni with d should not be equals to 0, and it should not be equals to 0 in the case when your normal जो है, when your normal is not equals to 0, ठीक है, और your d is equals to, d की वैल्यू क्या थी, P1 माइनस पी नॉट, और P1 माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब P1 और P1 बराबर होंगे, P1 और P नॉट। ये आपका P1 और P नॉट, अगर ये P1 है और ये P नॉट है तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकती। ये बराबर कब होंगे? जब ये एक लाइन ना होके एक पॉइंट होगा, है ना। जब एक लाइन ना होके, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट जहां पर P1 इक्वल्स टू P नॉट है, तो ये कोई लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं। तो ये दोनों केस नहीं होने चाहिए। नॉर्मल should not be equals to 0 and D should not be equals to 0 such that your normal dot product with D is not equals to 0. That means the edge EI and the line from P0 to P1 are not parallel. इसका मतलब ये है obviously, ठीक है। Now अब आपने करना क्या है, अब इस पूरी बात को हम आगे समझेंगे कि आपने करना क्या है। आपको बेसिकली लाइन क्लिपिंग करनी है। अब जो भी डायग्राम आपको गिवन है, लेट्स सपोज आपको ये डायग्राम गिवन है या आप ये इस डायग्राम की हेल्प से समझा रहे हो, कंसिडर दिस डायग्राम। इसमें आपने करना क्या है, फॉर एवरी लाइन, हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने नोटेशन देनी है, या तो PL या PE। PE का मतलब क्या है? PE का मतलब इज पोटेंशियली एंट्रिंग। Each intersection is categorized as potentially entering or potentially leaving the clip rectangle. ठीक है, कैसे? अगर आप मूव कर रहे हो P0 से P1 तक, P0 से P1 जा रहे हो तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप PE बोलोगे। If you are moving from P1 to P0, then intersection point is being called as PL. बट ये इतना आसान नहीं है। लिखने में तो बोल दिया कि आप अगर अंदर की तरफ जा रहे हो, if you are moving from P0 to P1, it is called PE. And if you are moving from P1 to P0, यहाँ से P1 से P0 की तरफ जा रहे हो तो it is called PL, potentially leaving। P0 से P1 की तरफ जा रहे हो तो it is called potentially entering। बट ये पॉइंट्स को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे इनकी वैल्यू को PE लिखोगे, कहीं पे PL लिखोगे, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यू आर यूजिंग द साइन नॉर्मल विद D इज लेस देन 0 है। अगर आपने नॉर्मल विद D का प्रोडक्ट इज लेस देन 0 आता है तो आपका पॉइंट होगा PE, और अगर नॉर्मल डॉट D का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 तो आपका पॉइंट होगा PL, ठीक है। और यहाँ जहां अगर PE होगा तो T की वैल्यू पॉजिटिव होगी और PL होगा तो T की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। इतना आपको गिवन है। नाउ जस्ट कंसिडर दिस, ये मैंने आपको बताया था, ये टेबल
दिस टेबल वी हैव डन यस्टरडे फॉर योर कन्वीनियंस। इतना पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि हम 4 क्लिप एज ले रहे हैं। वन इज लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, 4 क्लिप एज है। लेफ्ट के लिए वी आर टेकिंग एक्स मिन, क्योंकि जो आपका रेक्टेंगल होता है, जो भी आपका पॉलीगन है, ठीक है, ये लेफ्ट एज है। सॉरी, अगर इसको ना ऐसे देखो कि ये आपकी लेफ्ट एज है, इसको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेस करोगे तो लेफ्ट के लिए आप एक्स मिन ले रहे हो। लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है, राइट में एक्स पॉजिटिव होता है, पता है आपको ना। और टॉप में वाई पॉजिटिव होता है, बॉटम में क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये बात सबको पता है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हो, इफ यू टॉक अबाउट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। तो दिस इज योर लेफ्ट, this is your right, this is your bottom and this is your top. Left में x min and right में x max, top में y max and bottom में y min. Bottom के अंदर y is negative, top के अंदर y is positive, left में x is negative, right में x is positive. ये क्लियर है? जो मैंने बोला ये क्लियर है आपको? यस क्लास। तो इसी चीज को हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट क्लिप एज, जहां पर हम एक्स मिन ले रहे हैं, उस केस में एक्स मिन में एक्स नेगेटिव होता है तो वी हैव टेकन इट एज -1,0। राइट के केस में 1,0 क्योंकि एक्स पॉजिटिव होता है। बॉटम में वाई नेगेटिव होता है तो 0,-1 एंड टॉप के अंदर वाई इज पॉजिटिव तो वी हैव टेकन इट एज 0,1। इतना ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है, ये चीज याद रखो। अब हर एक लाइन सेगमेंट के लिए, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन सेगमेंट, ये वाले लाइन नंबर 1, दिस इज योर लाइन नंबर 1। एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करो और ये लाइन ड्रॉ करो। दिस इज द केस ऑफ लाइन नंबर 1। अब लाइन नंबर 1 में देखो इस तरीके की है, ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये है ना आपकी लाइन नंबर 1, देखो यही है, ये आपकी लेफ्ट एज को और टॉप एज को क्लिप कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, इट इज इंटरसेक्टिंग द लेफ्ट एज एंड द टॉप एज, ये आपकी लेफ्ट है। अब यहाँ पर लेफ्ट एज के लिए, लेफ्ट क्लिप एज के लिए हम एक्स की वैल्यू को क्या ले रहे हैं? यस, हु विल से एक्स की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट लेफ्ट एज? लेफ्ट क्लिप एज के लिए एक्स इज एक्स मिन, है ना। लेफ्ट में एक्स की वैल्यू सबसे कम होती है, राइट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब लेफ्ट है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल विच इज -1,0। तो नॉर्मल की जब वैल्यू -1,0 है और डी की वैल्यू क्या है? डी क्या था? P1 - P0। डी इज व्हाट? P1 - P0। P1 की वैल्यू क्या है? x1 y1। P0 की वैल्यू क्या है? x0 y0। और जब हम x के बारे में बात कर रहे हैं तो हम d को लिखेंगे x1 - x0। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो माइनस में आता है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0 एंड व्हेन इट इज लेस देन 0 वी कैटेगराइज द पॉइंट एज PE। कैसे PE कैटेगराइज किया ये समझ में आया है? हाँ जी साहिल, मैंने PE कैसे लिखा ये क्लियर हुआ है? आपको करना क्या है, हर एक लाइन सेगमेंट के लिए, जो भी लाइन सेगमेंट जिस भी क्लिप एज को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये वाली लाइन सेगमेंट देखो ध्यान से, दिस लाइन सेगमेंट इज इंटरसेक्टिंग द लेफ्ट क्लिप एज, और लेफ्ट क्लिप एज पे अगर आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है? -1,0। -1,0 का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या आएगी प्रोडक्ट की? नेगेटिव में आएगी, क्योंकि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। NE डॉट डी का प्रोडक्ट देख रहे हो ना, तो नेगेटिव आएगी। जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो पॉइंट क्या होता है? PE, और जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉइंट होता है PL, ठीक है। अब B के केस में देखो, B इज इंटरसेक्टिंग द टॉप एज। टॉप एज के केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या है? टॉप एज के केस में y क्या होता है? पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है टॉप एज के केस में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप एज? नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे रिटर्न है 0,1 व्हेन यू आर, 0,1। हाँ, और डी की वैल्यू क्या होगी? जब हम टॉप एज की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, तो दैट मीन्स y1 - y0। तो ये जब आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 आएगा।
ठीक है, मतलब 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उसको पॉइंट की वैल्यू देते हैं PL, दैट मीन्स वी आर पोटेंशियली लीविंग। ठीक है, अब ये PE हो गया, ये PL हो गया। PE का मतलब इट इज कॉल्ड एज TE और इट इज कॉल्ड एज TL। अब यहाँ पे T मतलब मैंने आपको बताया था, T का मतलब होता है टाइम, मतलब कि जिस टाइम पे हमने लेफ्ट एज को क्लिप किया और जिस टाइम इंटरवल पे हमने टॉप एज को क्लिप किया, तो कौन सा टाइम छोटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ, TE is less than TL। Can you all see that? TE is less than TL। जब TE less than TL होता है तो आप रिजेक्शन नहीं करते हो, यू विल नॉट रिजेक्ट द लाइन, यू विल कंप्यूट द इंटरसेक्शन पॉइंट एट TE एंड TL। ठीक है, कैसे कंप्यूट करेंगे, वो कंप्यूट करने के लिए आप साइरस बेक में नहीं बता रहे, आप बस इतना लिखोगे दैट वी विल कंप्यूट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने। दिस एल्गोरिथम इज टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द पोर्शन ऑफ द लाइन दैट यू विल डिस्प्ले द पोर्शन A to B। ठीक है, आपको क्या डिटरमाइन करना था कि आप उसको रिजेक्ट करोगे कि डिस्प्ले करोगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने निकाल दिया कि आप जो लाइन नंबर 2 है उसके A से B वाले पोर्शन को डिस्प्ले कराओगे। ठीक है, नाउ कंसिडर द लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, सॉरी लाइन नंबर 1 हमने किया, लाइन नंबर 2 में मुझे बताओ, ये केस है लाइन नंबर 2 का। दिस इज द केस ऑफ लाइन नंबर 2। यस, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन। ये जो एक्सटेंडेड टॉप एज है और जो एक्सटेंडेड लेफ्ट एज है, ये वाली लाइन जो है इसके एक्सटेंडेड पोर्शन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये जो लाइन है P0 जो सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रहा है वो टॉप एज को कर रहा है। तो पॉइंट A के लिए टॉप एज पे नॉर्मल कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू एट पॉइंट A? 0,1 है ना, नॉर्मल टॉप वैल्यू 0,1 होती है। और D के कितना होगा, y1 माइनस y0। यहाँ पर लिखा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है कि जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आती है वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या हो गया, PL। ठीक है, और जो B है वो कौन सी एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज इंटरसेक्टिंग द लेफ्ट एज, लेफ्ट क्लिप एज। लेफ्ट क्लिप एज के लिए आपको पता है नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, -1,0। -1,0 का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल विद D इज लेस देन 0, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो लेस देन 0 के केस में योर पॉइंट विल बी PE। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो ये पॉइंट है PL और ये पॉइंट है PE, दैट मीन्स द टाइम TL, ये TL हो गया, ये TE हो गया। यहाँ पर TE इज ग्रेटर देन TL। कैन यू ऑल सी दैट, TE इज ग्रेटर देन TL। तो जब TE इज ग्रेटर देन TL होता है तब आप कंप्लीटली रिजेक्ट करते हो, you will reject the line segment। ठीक है, यहाँ पर TE is less than TL था तो आपने रिजेक्शन नहीं किया था, आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। जब PE is greater than PL है, that means TE is greater than TL, so you will reject the line segment completely। Now look at for the line number 3। Deepak, please send me the attendance। ठीक है, now look at the case for line number 3। मैम कैन वी डू फॉर सेपरेट लाइंस, हम अलग अलग लाइंस लेके कर रहे हैं। हाँ, ये देखो ना, ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम आई एम मैम टेलिंग। बट एग्जाम लाइक क्वेश्चंस कैसे आएंगे फॉर एग्जाम में? इस पे क्वेश्चन आपने इस पे न्यूमेरिकल हैव नॉट सीन, यू हैव टू एक्सप्लेन द एल्गोरिथम। एक सेकेंड, आपने क्या किया है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो साइरस बेक एल्गोरिथम को। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपने ये केस ले लिया कि दिस इज द विंडो और आपने ये सारी एजेस ले ली, सारी लाइन सेगमेंट ले ली, आपने सारे केसेस ले लिए, पूरा रिजेक्शन का केस भी ले लिया, एक सिंपल इंटरसेक्शन का केस ले लिया, और ये वाला केस कौन सा है, मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट का। कैन यू ऑल सी दैट, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। आपने हर एक केस के लिए समझा दिया। ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, जो शॉर्ट डायग्राम बना रखे हैं वो मैंने हर एक लाइन सेगमेंट के लिए एक एक करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले बताया द वर्किंग ऑफ साइरस बेक। ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बताया पीटी की वैल्यू क्या होती है, फिर उसके बाद यू एक्सप्लेन अबाउट कि इनका अगर ये होगा तो इनसाइड आउटसाइड होगा,
फिर आपने टी की वैल्यू कंप्यूट करी, फिर आपने ये बताया कि नॉर्मल शुड नॉट बी, मतलब कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी लेस देन 0, देन यू आर टेलिंग कि हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट को आप पी या पीएल कर रहे हो और टी की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो। आई हैव रिटन एंटायर थिंग, उसमें से आपको जो जो समझ में आता है, ये चीजें बताना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायग्राम में हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। अब मैंने लाइन नंबर 1 और 2 को बता दिया, लाइन नंबर 3 का केस देखो। लाइन नंबर 3 का केस ये है, यहाँ देखो, ये देखो ध्यान से, ये दिस इज द डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पे ए बी सी डी 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो जल्दी से नॉर्मल की वैल्यू निकाल लो हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ए पे नॉर्मल क्या है, यहाँ पर कौन सी एज को क्लिप कर रहे हैं, ये कौन सी एज है, बॉटम एज है। बॉटम एज पे y नेगेटिव होता है, तो क्या वैल्यू होगी 0,-1, और जब भी माइनस होता है तो पॉइंट कौन सा आता है, पीई, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब बी कौन सी एज को क्लिप कर रहा है, लेफ्ट एज को। लेफ्ट क्लिप एज पे आपका x जो होता है वो मिनिमम होता है, मतलब कि इट इज -1, -1,0, तो अगेन आपका पॉइंट क्या आ गया, पीई, नेगेटिव वैल्यू पे पीई आता है। अब सी इज इंटरसेक्टिंग विच क्लिप एज, इट इज द, कौन सी एज है ये, राइट के केस में आपका x जो होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट मीन्स 1,0, 1,0 में आपकी जो प्रोडक्ट आएगा इज ग्रेटर देन 0, एन ई डॉट डी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में आपका पॉइंट आता है PL। सिमिलरली द पॉइंट D इज इंटरसेक्टिंग द टॉप एज के केस में y इज पॉजिटिव, दैट मीन्स 0,1, तो 0,1 को जब आप D से मल्टीप्लाई करोगे अगेन द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन 0, तो यहाँ पर फिर से आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, PL। अब आपने 4 पॉइंट निकाल लिए, इट इज PE, it is also PE, it is PL and PL. Now among the two pairs, among the pair of PE, which pair do you select? तो वो केस आपका लिखा हुआ है कि now choose among two pairs, तो दोनों में से लार्जेस्ट PE कौन सा है, ये वाला पॉइंट बड़ा होगा कि ये वाला पॉइंट बड़ा होगा, ऑफ कोर्स दिस पॉइंट इज बिगर, लार्जेस्ट, तो यू विल सिलेक्ट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। सिमिलरली इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट। PL में among the pair of PL, which is the smallest? Which one is the smallest? C. C will be the smallest. So you have selected these 2 points, PE and this is PL. ये वाले दो PE, ये वाला PE आपने डिस्कार्ड कर दिया, ये वाला PE आपने सिलेक्ट किया। Similarly इन दो PL में से which is the smallest PL? This is the smallest PL. You have discarded this PL. Now this is PE, this is PL. Here carefully, clearly you can see कि इस केस में जो PE है आपका, यहाँ पे जो आपका PE है is less than PL, है ना, PE is less than PL है, क्योंकि B पे PE है और C पे PL है, तो ये वाला पॉइंट इज लेस देन PL। लेस देन वाले केस में आप क्या करते हो, रिजेक्शन नहीं करते, यू विल कंप्यूट द इंटरसेक्शन पॉइंट, सो यू विल कंप्यूट इंटरसेक्शन पॉइंट एट पॉइंट B and C, इंटरसेक्शन पॉइंट B and C पे कंप्यूट करो। सो दिस इज द केस when you have multiple PE and multiple PL, so which is the largest PE you will select and the smallest PE among the two you will select. Is it clear to you all? सबको clear हो रहा है? Yes ma'am. So this is what the Cyrus-Beck algorithm, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसके जो अगर आप एग्जाम्पल समझाओगे तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले तो इसका पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर एग्जाम्पल समझाना है। इसका मैंने सूडो कोड भी लिखा हुआ है, तो अगर आप सूडो कोड भी एक्सप्लेन करना चाहते हो देन यू कैन आल्सो एक्सप्लेन कि हर एक लाइन सेगमेंट के लिए सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि वो लाइन सेगमेंट है कि नहीं। इफ P1 is equals to P0, दैट मीन्स यू विल नॉट, लाइन इज डिजनरेट, वो पॉइंट है, वो लाइन है ही नहीं तो इनिशियली आप TE और TL की वैल्यू को 0 और 1 सेट कर दोगे। दिस इज द प्रोग्राम दैट यू विल रन। आपके सिलेबस में CG की लैब नहीं है, बट BTech के अंदर CG की लैब होती है, तो उसमें हर एक एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TE और TL को हमने 0 और 1 लिया, और ना हर एक लाइन सेगमेंट के लिए हम पहले चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम T की वैल्यू को कंप्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम PE और PL निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं ना हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे PE और PL की वैल्यू, है ना, और फिर उसमें से मैक्सिमम निकाल रहे हैं कि अगर हमारा एक से ज्यादा PE है तो मैक्सिमम कौन सा है, और PL के केस में वी आर कंप्यूटिंग द मिनिमम।